Hi, good evening, everyone. All right, so we will start. All right, so today we are going to talk about creative. That means to say we'll be talking about importance of design. So we'll be talking about importance of design. We'll be talking about various components of designing. Uh, what are the key factors that we should consider while designing? Okay, so all of these things that we are going to discuss today. As I requested, it would be better if you are available on your laptop, because once we are done with the discussion session, probably we'll move on to the practice, right? And we'll try to design or use some of the tools. Am I audible to you guys? Am I audible? Guys, am I audible? Yes, yes, you are, sir. Okay, Yes, because your you voice are. seems to be blurred. Right. Yes, sir, you are Yes, audible. yes, you are. All right. All right. So maybe one or two guys are saying maybe some issues with their network or something like that. Okay. All right. So what I was trying to discuss is today we'll be discussing about creative services. That mean to say importance of design, importance of creativity, or uh, banners or product images in digital marketing. So first we will try to understand its importance, its characteristics, and then followed by that we will be moving on towards practice practice of it, right? So allow me to share my screen and then we'll start. All right, so we'll be discussing about creative design using Canva. Primarily we'll be discussing Canva, but we will also try to see few other tools which are quite handy, and a few of the tools which are AI based, right? So we'll try to see how to use those tools for our requirement. So overall, we'll be understanding about Canva, how to set up account in Canva, then interface of Canva, some of the designing, some of the banners or hero image on Canva, for website, for social media, and few of the best practices that we should consider while creating banners. So Hello, sir. yeah, yeah, Give Abdullah. a recap. I wasn't able to hear you from since the beginning of the session. But are you able to hear me now? Yes, yes, yes. Now I'm Right. able to So hear. we just started. We have just started, so don't worry about it. Yeah. Okay. All right. So let's understand about creativity in design. So when we talk about creativity, it's about imagination. That means to say what we think, what are the ideas जो हमारे जहन के अंदर, जो हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, आइडियाज आते हैं, and to communicate related to a product or services. So whatever the means that you want to use, by using some of the creativity. That means to say here particularly we are talking about, the moment we talk about creativity, we are talking about designs. We might be talking about colors, or we might be talking about the kind of content that we are going to use. Okay. So there
are various kind of things which comes when we talk about creativity. Now let's understand about the importance of creativity in digital marketing. First and foremost thing is about capturing the attention, right? So it's about capturing the attention. That means to say, if you are just putting text, अगर हम सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हैं, राइट, तो आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो दूसरों से होगा वो उतना डिफरेंशिएटिंग नहीं होगा, उतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होगा जितना कि हम इमेज या कलर को यूज करें. एज वी प्रोमिनेंटली से, वन पिक्चर विच स्पीक्स अ लॉट देन टेक्स्ट, यानी एक फोटोग्राफ टेक्स्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्रेस कर देता है, राइट. सो क्रिएटिविटी इज समथिंग विच स्टैंड्स आउट, जो कि दूसरों से आपको अलग करता है और आपके व्यूअर्स के अटेंशन को ग्रैब करता है. सो इट कैचेस द अटेंशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रांड डिफरेंशिएशन. यूनिक विजुअल components of your design is going to differentiate you from other brand. मतलब जितना डिफरेंट, जितना अलग आपका ब्रांड, आपका लोगो, आपकी क्रिएटिविटी, आपका डिजाइन दूसरे कंपनीज के ब्रांड, दूसरे ब्रांड से अलग होता है, उतना आसान डिफरेंशिएट करना आसान होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शूज का एग्जाम्पल ले लें, एथलीट शूज का एग्जाम्पल ले लें, Nike, Puma, Adidas, right? We have many other Skechers, or even from Bata, we have Power, we have North Star, we have other brands as well, right? तो ये सारे brands जो हैं, ये सारे brands available हैं. But when we talk about differentiating factor, we clearly depict the moment जैसे ही हमारे दिमाग में एक ब्रांड का नाम आता है, हमें ये क्लियरली डिफाइन कर देता है कि ये क्या है, हाउ डिफरेंट इट इज, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एडिडास की बात करें, राइट, सो इट इज क्वाइट प्रीमियम और क्वाइट कॉस्टली शू इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स. फॉर एग्जाम्पल, पावर, विच इज द ब्रांड ऑफ बाटा, राइट, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ बाटा. दैट मीन टू से that brand Power is a brand from Bata, right? So it's a Power is economy brand, whereas Adidas is a luxury brand or premium brand, right? So the moment we talk about brand, the moment we talk about logo, the moment we talk about imagery connected with a particular brand, it differentiates one company to the other company. Also, there is an emotional connection. You will see, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि यंगस्टर्स के लिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या बच्चों के लिए होते हैं, या बेबी गर्ल के लिए होंगे. फॉर एग्जाम्पल, बार्बी डॉल, you'll be able to see, आप देखेंगे कि that carries a pink color, a specific product, a specific categorization that is there. Whereas for boys, Batman or Spider-Man or that kind of thing for kids, baby boys, right? So जैसे ही एक पर्टिकुलर नाम लिया जाता है या लोगो दिखता है, वो वहीं से डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये क्या है, उसके साथ इमोशनल कनेक्ट क्या होगा. Sometimes it's for women, purple color or light purple color or various other colors, pink colors and all, that is more resembling towards feminine kind of colors which are there. Sometimes few of the colors are power generating colors, right? तो डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस बेसिस पे आपको कलर कॉम्बिनेशन या फॉन्ट या स्टाइल आपको चुनना होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड about target customer. Anything, whatever we are doing, whether we are creating logo, we will be creating banners, हम कुछ भी बनाएंगे, ये हम अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए बनाएंगे, राइट. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जो कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, चाहे हम वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट फॉर आवर टारगेट कस्टमर्स, राइट. सो वी आर डूइंग इट फॉर टारगेट कस्टमर्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड योर टारगेट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं होता कि हम
किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना चाहते हैं और जस्ट हम कह दें कि हम सिर्फ फीमेल के लिए लेके आना चाहते हैं या सिर्फ मेल के लिए लेके आना चाहते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. ओके, so we need to understand who is your target customer, that means to say on demographics, and then followed by psychographic. यानी उसका इंटरेस्ट क्या है, किस तरह की चीजों को वो पसंद करता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, राइट. So all of these things, that's what we need to understand. Why it matters? Because there has to be relevance. When we are targeting our customer, whatever component, जो भी चीज हम create कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, that has to communicate to your target audience and it should have some relevance. यानी उससे connection होना चाहिए. It should not be the case कि हम bridal suit बेच रहे हैं और उसके ऊपर ब्लैक या व्हाइट कलर का हम सूट बेचना शुरू करें, विच इज अ काइंड ऑफ कलर, especially in North India or this part of the country, that black color or the white color which is not gelling with bridal suits, right? तो हम ब्राइडल अगर प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, वहां पे सफेद और काले रंग का अगर हम प्रोडक्ट कलर कॉम्बिनेशन का सूट्स बेचना शुरू करें, तो दैट विल नॉट जेल, राइट. सो इट शुड हैव सम रेलेवेंस. लाइकवाइज अगर हम यंगस्टर्स को, जैसे मैंने कहा स्पाइडरमैन का आप प्रोडक्ट ले लीजिए, राइट, इट हैज सम रिजेम्बलेंस टू द एंड रेलेवेंस टू द किड्स, दैट दे वांट टू फ्लाई हाई, दे वांट टू, हम लाइक इमेजिनेशन, राइट. और कार की बात करें हम, राइट, तो स्पोर्ट्स कार है या कौन कौन सा कार है, वो उस तरह का रेलेवेंस होना चाहिए, राइट. देन it actually triggers about the engagement. Better you are able to gel with the customer, the kind of likes and dislikes, engagement with your brand will go higher and higher. So to understand that, we need to look into various level of things. That mean to say, first and foremost thing is try to conduct small market research or try to look for what are the kind of colors that that could be probable good colors for your brand. You try to analyze your customer data and also try to see how your competitors are actually doing it or playing with the colors, right? So these are few important things that we should understand before we go for creation of any banner or creation of any creatives. Now let's look into psychology of various colors. Means colors का क्या colors के क्या psychology होंगे, how it is going to play emotional role, that's what we need to understand. As I was saying, जैसा मैं कह रहा था, different colors evokes different emotions, right? Sometimes red color is more for excitement, right? Sometimes the way that Microsoft is using blue or royal blue color, that is more for corporate, or that is more for soothing and a different kind of image that it builds. Likewise, if we talk about Reliance, they are having a peculiar combination of color, which is more or less about the combination of dark blue and red. Likewise, when we talk about Tata have a different brand, different under Tata, they have different brands like Taj Group of Hotels, which is a product, which is again a product of Tata, right? But it is of premium and royal way. So that's where you will be able to see they have golden color combination in their logo. Right? तो इसी तरह से आप किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और हर कलर कुछ ना कुछ कहता है. Every color has a message that communicates. Similarly, brand identity, that means to say, if you are trying to create your brand, all of the platform, but चाहे आप वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप अपने सोशल मीडिया के स्टेटस रख रहे हैं, फेसबुक आप क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, that should carry the same kind of color combination what you have decided for
as a color tone for your brand. And also it should have an impact of cultural consideration, right? As I said, if you talk about cream color or white color on a bridal occasion in North India or central part of the country, probably it is not gelling with, whereas the same cream color or off-white color is okay in terms of bridal suit or sari for Kerala or Chennai likewise, right? So we should understand cultural consideration as well. किसी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर कलर का एक अपना इंपॉर्टेंस है, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स एज वेल. Likewise, if you are targeting your products towards a community, probably you need to think on that, or towards an educational, like you want to target only to educated people, right? For example, NIT जो कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर उसका आप लोगो और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है, अगर उसको आप आइडेंटिफाई करें, राइट, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल शांत टाइप का एक उनका है, मतलब something which is very cool and calm, cool, composed and calm, but still it communicates professionalism, right? So that's what the kind of thing which is, right? So these are few things that we need to understand about the psychology of color. It's not like we are going to choose any random color, whatever looks good for you, right? It's not like that, because ultimately we are making all efforts we are doing for our customers, not for ourselves. Then next important point is effective design principles. It should be very simple. Keep your design clean and focused. It should not be very complicated, not at all. जो भी इमेज, जो भी कलर, जो भी मैसेजिंग आप यूज कर रहे हैं, that should have enough of the space so that it communicates. Then consistency. Consistency means अगर आप एक लोगो के अंदर एक अलग फॉन्ट यूज कर रहे हैं, राइट, आप बैनर के अंदर जब टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कोई अलग फॉन्ट यूज कर रहा है. इफ यू आर यूजिंग ऑन योर वेबसाइट, यू आर यूजिंग सम अदर फॉन्ट, दैट शुड नॉट बी द केस. Whatever the font that you have decided that you want to use for your brand, you should maintain that. Maybe for logo you are going to use a separate font, whereas when you are creating your visiting card or when you are creating your marketing collateral, what will be the font and style of your heading, and what will be the font and style of your subsequent content, जो कि written content हो सकता है, जो कि smaller content हो सकता है, right? So we should maintain a consistency across all the channels, all the materials. Balance the elements between text and image. बहुत ज्यादा टेक्स्ट भी नहीं होना और सिर्फ इमेज भी नहीं होना. You should have a balance of maybe sometimes 60-40, maybe sometimes 50-50, or maximum 30-70, right? But it should not be 70% as a content. 30% as a content can go, but not 70% as a content, right? Then contrast, so that if you are using a dark color for your font, probably background should be light. If, or vice versa, if you are using light color for your font, background should be of dark color. That means to say contrast should be there so that easy to read. Then important critical elements to look at time of designing: font, image, icons, colors. So these are few of the things that we need to understand. So why I am trying to tell you all these things is, creating a logo or creating a banner or designing a website is not going to happen just like that. We should have lot of thinking process before we go for actually creating any design. Let's see the example of few of the Indian brands. For example, Zomato. Zomato is of which color? Bright red color. I'm like, it's very prominent and bright red color. Target audience: food lovers, tech savvy, urban guys. They are the target audience. Design elements, we talk about bold color, that means to say bright red color, which is eye-catching and associated with appetite. यानी भूख, मतलब urgency है आपकी. Of course, humorous and relatable content. Whenever they are using
एडवर्टीजमेंट, वेन एवर दे आर डूइंग एडवर्टीजमेंट, जब भी वो कोई एड क्रिएट करते हैं, वो ह्यूमरस यानी थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा मजाहिया बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। एंड दे आर ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल, या तो रीसेंट ट्रेंड जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ बनाते हैं, राइट। लाइकवाइज along with Zomato, if we talk about the brand of Amul butter, right, you will see whatever the incidents that happens in the country or at the global level, अमूल क्या करता है, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई एड अपना क्रिएट करता है और उसको सर्कुलेट करता है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ह्यूमरस, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जोमैटो। सो जोमैटो का लाल कलर जो है बहुत ही बोल्ड और बहुत ही, मतलब कितने भी दूर से आप देखो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जोमैटो है, राइट। विजुअल्स, हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ फूड दैट सिमुलेट्स एपेटाइट, राइट। तो जो भी इमेजेस यूज करते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज यूज करते हैं, एंड इट शोज दैट इट्स वेरी फ्रेश, फूड इज वेरी फ्रेश, इट्स रेडी टू ईट, हॉट इमेज विच इज देयर, राइट। बिल्कुल गर्मा गर्म खाने का फोटो होता है और ऐसा लगता है कि बस अभी ताजा है और इसको डिलीवर किया जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट? अ वाइड ऑडियंस बाय कंबाइनिंग ह्यूमर विद हाई क्वालिटी विजुअल्स, मेकिंग द ब्रांड मेमोरेबल एंड रिकॉग्नाइजेबल। यानी इतना सिंपल है जोमैटो, सिंपल जोमैटो लिखा हुआ है, आउटलाइन उसका डार्क रेड कलर है, ब्राइट रेड कलर है, एंड फॉन्ट दैट दे हैव यूज्ड इज वाइट कलर। सो कितना भी दूर हो, however far the guy is, you'll be able to recognize that हाँ वो जोमेटो वाला जा रहा है, right? So that is the importance of a brand, and there is always a story behind a brand. Next important thing is we will be saying Swiggy. Swiggy, busy professionals and urban youth. They have little different target audience, but more or less when we talk about Swiggy or Zomato, almost the similar kind of audience it is. But Swiggy, of course, as they want to communicate, as Swiggy want to demonstrate, they want to connect to the busy professionals, that means to say corporate people. Obviously, that is also associated with household people and all, but unka primary जो objective था, that was for professionals and urban youth. Then design elements, orange color scheme, it reflects energy and enthusiasm. Engage users with interactive and fun campaigns on social media. And minimalist design, clean and simple designs that focus on the message. साफ message उनका clearly visible रहता है, right? And what is the impact? Creates a strong brand presence through engaging and visual appealing content. So this is what the impact that they want to create, and this is the kind of impact that's getting created. Right? Likewise, we will see another brand called Paperboat. Hope all of you have heard about Paperboat. Zomato और Swiggy तो हम रोज दिन उसको देखते रहते हैं, ठीक है। Paperboat is again a soft drink, or you can say there's a I'm like कुछ इसके जूसेस भी आते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके हैं, राइट। सो इट्स अबाउट हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, राइट। जो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं, राइट, या जो लोग इधर उधर की चीजें नहीं पीना चाहते हैं, दे वांट टू ऑप्ट फॉर पेपर बोट। तो थोड़ा सा ये हेल्थ कॉन्शियस और थोड़ा सा एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ टारगेट को ये केटर करता है, राइट। एंड देन the kind of color that they have used, it's a pastel color, soothing and appealing, that is there, right? So जो बहुत ही soothing color है, if you will find the Paperboat, the packaging of Paperboat, you'll find that mostly it is of white, plain white color, and on that उसके ऊपर आपको अलग अलग कलर से आपको emboss करके आपको कुछ कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा, right? It's a very simple, very soothing, decent kind of color combination that they are having. It has a story. They always try to say a story behind that. जैसे आप लोग देखिएगा जब एशियन पेंट्स का एड आता है तो वो एक एड का स्लोगन है उसका, हर घर कुछ कहता है, right? Means every house with their differentiating colors tells something.
it has a story, right? So it has an emotional connect. They try to create emotional connect. Likewise, you can also do. And third important point is eco-friendly. That means to say, जिस प्रोडक्ट से, जिस चीज से उसका पैकेजिंग बनता है वो इको फ्रेंडली है, दैट मीन टू से एनवायरमेंट सेफ्टी दे आर टेकिंग केयर ऑफ. सो दैट्स रीजन इवन इफ इट इज ऑफ लिटिल कॉस्टली, ये थोड़ा महंगा भी है, but people opt for it because there is a social message behind that, right? So likewise, when you are creating your brand, you have to think on all these parameters. Okay, now let's understand few additional tips. We have to understand, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डिजाइन हम बना रहे हैं उस चीज का यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा. यानी व्हाट पीपल आर गोइंग टू एक्सपीरियंस मींस जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप चूज कर रहे हैं, whether people are liking it, right, or they are engaged with your message, they are engaged with your color combination, the icon, the font, the style, the colors that you are using or not. Is it user friendly and intuitive? क्या वो आपको आपके साथ कनेक्ट कर पाता है, यूजर्स आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडेप्टेबिलिटी. Create a design that can be easily adapted at different platforms. ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा डिजाइन चूज करें, ऐसा लोगो चूज करें जो कि स्क्रीन पे तो बड़े में बहुत अच्छा दिख रहा है, बट जब इसको बहुत बड़ा करेंगे ऑन ए कैनवस, ऑन होर्डिंग्स, प्रोबेबली इट फेड्स आउट, या फिर वो अपना रिजेम्बलेंस बिल्कुल खो देता है, बिकॉज इट इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन सच ए वे, वो इतना ज्यादा पिक्सलेट हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है कि उसका मतलब नहीं निकल पाता. या कभी आप उसको बहुत छोटा, यानी इफ यू वांट टू प्रिंट अ लोगो ऑन योर पेन, प्रोबेबली यू आर नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज आप एक लिमिट के बाद अगर उसको छोटा करेंगे तो उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाती, राइट? So you should understand that the logo that you are creating, the brand identity that you are creating, however the larger the canvas is or smaller the canvas is, can you present your logo properly or not? यानी छोटे से छोटा कैप, अगर आप कैप के ऊपर लोगो इम्बॉस करना चाह रहे हैं, क्या वहां पे सही से दिख रहा है? टी शर्ट पे आप लोगो लगाना चाह रहे हैं, शर्ट के पीछे आप लोगो डालना चाह रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट पे, बैग पे, किसी भी चीज पे, तो वो कैसा दिखेगा? सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड try to take feedback from your potential customers, और जो आपके शुभ चिंतक हैं, यानी जिनसे आप फीडबैक ले सकते हो, जो आपको ओपन और जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं, प्लीज ट्राई टू टेक अ फीडबैक बिफोर फाइनलाइजिंग योर लोगो और क्रिएटिव और your brand identity. So these are few of the things that we need to understand. Okay, so far we have discussed about what is the importance of creativity, importance of color, what are the things that we need to understand, right? तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं अभी तक बोला आप लोगों को, वो मेरे मैसेजेस बिल्कुल क्लियर हैं आप लोगों को. आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली? Yes or no? Yes, sir. Yeah. All right. Yes, yes, sir. Thank you. Yep. So Yes, I understand, मैं ये समझता हूं कि अभी तक हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन शायद अभी जो आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसके बाद शायद आपके सोचने का नजरिया, या किसी भी लोगों को देखने का नजरिया, ब्रांड को देखने का नजरिया आपका बदल सकता है. या अगर आप अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं कि हमें कुछ कंपनी शुरू करना है, अपने लिए लोगो बनाना है, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? So this is something which is important. Now, moving on towards Canva. So थोड़ा सा क्विकली हम कैनवा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कैनवा को प्रैक्टिस करेंगे. उसके साथ साथ कुछ और है, कुछ और पॉइंटर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो देयर आर सम ऑफ द मैसेजेस. व्हाट आर दीज मैसेजेस? ऑल राइट. ओके,
सो कैनवा क्या है? आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड इट अर्लियर। आप में से कुछ लोगों ने तो कैनवा को पहले यूज किया होगा, या किसी ने भी यूज नहीं किया है। और हैव यू हर्ड ऑफ कैनवा? Someone messaged. What is that? Yes, sir. No. Okay. Sir, one of my use it for making a site and also making Instagram posts through Right. Canva. Right. That's what I am asking. मुमकिन है आप लोगों में से कुछ लोगों ने यूज किया होगा, या कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। राइट। सो कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन टूल है, जो कि अमेच्योर लोगों के लिए कह सकते हैं, यानी जो नया नया कुछ सीख रहे हैं, यानी वो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इस तरह की चीज के ऊपर एक्सपर्टाइज नहीं रखते। सो DIY काइंड ऑफ थिंग है, यानी डू इट योरसेल्फ। आप थोड़े से अगर कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स अगर आपको आता है, तो आप कैनवा को यूज करते हुए अपने मतलब की चीजें आप बना सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू बी वेरी क्वालिफाइड in graphics or in creativity in designing to create something on Canva। आपको थोड़ा सा IT, थोड़ा सा कंप्यूटर savvy, आप टेक savvy हैं, so you can make it, right? The importance of Canva in digital marketing is it enhances visual content and it improves engagement as well। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे इतने तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, right? Even in free version, it has free as well as premium version. Even in free version, it has so many templates which are available that you can customize it and use it for your purpose. Right? अगर आप इसका paid subscription ले लेते हैं, nothing like it. You can end up doing lot of stuff. You can create PPT, you can create brochure, you can create flyers, you can create posters, you can create PowerPoint presentation, you can create video presentations. Lot of stuffs are there if you are going to take premium version of Canva, but still free version also has lot of features. So when we talk about Canva, I'm like, I'll be taking you guys to actually to Canva, but few of the things that we are just running through. So इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर फ्री प्लान है और प्रो प्लान है। First and foremost thing is like to create a Canva account, you need not to use any of your credit card or card number, because कुछ ऐसे products होते हैं, software products होते हैं जो free तो होता है, but after some time there will be a paid subscription that will be there. So they ask you to put your credit card detail or card detail or payment detail, so that even if you want to cancel it, you can cancel it, but they want you to submit it. But in case of Canva, it's not like that. आप कैनवा में साइन अप कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ईमेल अकाउंट, एनी ऑफ ईमेल आईडी, राइट? और यू कैन डायरेक्टली लॉग इन यूजिंग गूगल लॉग इन और सोशल लॉग इन। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन रहता है, या तो आप ईमेल से जा सकते हैं, या तो सोशल लॉग इन विच इज फेसबुक आईडी से, या फिर जीमेल अकाउंट से आप जा सकते हैं। इट हैज फ्री एंड प्रो प्लान बोथ। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू साइन अप, इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन एंड देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट लेवल। अब इसके अंदर होगा क्या, when we are going through Canva, it will carry a dashboard, means जैसे ही आप लॉग इन करेंगे Canva के अंदर, ये आपको एक इंटरफेस दिखाता है जहां जो भी डिजाइन आप क्रिएट करेंगे, it will be there, it will be saved over there. For example, आप एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करते 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 आपने बीच में छोड़ दिया, राइट? It will not go, it will be automatically saved. So whenever you are going to log in again, it will be there in your created design. So there is no chance that you missed to save and you lost your data. That kind of thing is not there, right? ऐसी चीजें नहीं होंगी। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, colors, background, everything that you can do, right? So there are a lot of stuff in Canva. Now, these things we'll be practicing it, but still I have created this in a PPT, because when I'll be sharing PPT as well as videos to you guys, so that उस particular topic से related जो अगर text भी है, content भी है, so that you guys can take a reference of it
and then based on that, when you are practicing it, you can go along. So ये drag and drop kind of thing है. आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो. आपने गूगल से एक इमेज सर्च किया या किसी और फ्री सोर्स से आपने एक इमेज सर्च किया, आप उसको यूज करना चाहते हो, आप इसके अंदर इंपोर्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो, राइट. सो यू हैव कलर पिकर, कौन सा कलर यूज करना है, बैकग्राउंड किस कलर का होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा. If you want to put some animation on your design, you can do so. So there are a lot of things that we can play around. You can select multiple dimensions. There are predefined dimensions as well. और अगर आपको अपना डायमेंशन बनाना है तो आप अपना डायमेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं. आप सोशल मीडिया के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कवर फॉर अ सोशल मीडिया, इट हैज अ डायमेंशंस, प्री डिफाइंड डायमेंशन. अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई किस डायमेंशन में हमको बैनर बनाना है, एंड इफ इट इज नॉट फिटिंग इट, प्रोबेबली यू हैव टू रीडिजाइन द सेम, राइट. वेयर एज यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया में कवर पेज के लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, टिकटॉक के लिए बनाना है, यूट्यूब के लिए बनाना है, जिसके लिए भी आपको बनाना है, it is well defined. You just choose that and start editing it. Likewise, आपको थंबनेल बनाना है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बनाना है, राइट, नॉर्मल पोस्ट के लिए, राइट. सो you can directly select it and start editing it. Also, you have an option to integrate social media with the Canva, जहां से आप डिजाइन क्रिएट करें और डायरेक्टली सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर सकते हैं, राइट. सो यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल. Few of the tips for the best practice. One is consistency in design. Use the same font, color and style. So जब भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, स्टाइल ऑफ फॉन्ट, यानी आप एरीज यूज कर रहे हैं, टाइम्स यूज कर रहे हैं, वर्डाना यूज कर रहे हैं, जो सभी फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं, make sure that you remember it and try to keep it handy, that what color that you are using, what font that you are using, what color that you are using, what style that you are using. So make sure that you have this consistency in your design. High quality image. Try to use high quality image, not blurry image, right? आप कैनवा के फ्री डेटाबेस से भी निकाल सकते हो, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां फ्री इमेजेस अवेलेबल हैं. You can Google it, you can identify those places and you can use those images. Readable text, जो भी टेक्स्ट आप यूज करें, छोटा हो या बड़ा हो, वो रीडेबल हो. इतना छोटा भी नहीं हो जाना कि वो कुछ दिखता नहीं, और इतना बड़ा भी नहीं हो जाना कि वो आपके डिजाइन को पूरा खत्म कर दे, राइट. एंड देन इफेक्टिव, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज इफेक्टिवली द कलर कॉम्बिनेशंस. जो भी कलर आप यूज करो, इफेक्टिव एंड प्रॉपर उसको यूज करना है. ऑलराइट. So this is about few of the tips and best practices. That's what we need to understand. Now, let's move on to look into few of the tools for creative design. First and foremost is Canva. Though I will be sharing you this video, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वीडियो को हम शेयर करेंगे आपसे, बट स्टिल ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द टूल्स दैट विल बी ऑलवेज हैंडी टू यू, और आई विल पोस्ट दीज लिंक्स एज वेल इन द व्हाट्सएप so that it will be handy for you guys. Anyway, I'll be posting this PPT as well to you guys, okay, but at the same time this is something that you should keep handy, because हर चीज के लिए Canva is good for most of the things. Pixlr is also likewise. Logo AI is actually a tool which helps you to create logo with the help of AI. Similarly, designs.ai, you can create multiple designs, variety of designs using AI. Logo.com is again for logo. Look A is a tool which you can use for creating various kinds of creatives, banners, logos, what you say, a small banner, Facebook cover pages and all. So Canva और Pixlr ये दो ऐसे हैं जो कि बहुत ही कॉमन और प्रोमिनेंटली यूज होते हैं. बाकी चीजें भी अच्छी टूल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, राइट. Okay, so what we are going to do today, this is something which is must for all of you. Take a screenshot of this, and this is the exercise that we are going to do.
one first and foremost thing is like actual name or the fictitious name of the business. As I said yesterday, that all of us has to think for a name. कोई एक ऐसा बिजनेस जो कि आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई नाम हो, कोई कौन सी कैटेगरी का हो, तो ये थोड़ा सा आप लोग डिफाइन कर लीजिए. आई विल बी कमिंग टू ईच वन ऑफ यू वन बाय वन, राइट? बट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस और प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट. बिकॉज जब हम कैनवा यूज करना शुरू करेंगे तो आपको उसी चीज के बारे में, मान ले कि आप ट्रेवल्स की एक वेबसाइट, एक कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं, तो ट्रेवल्स है तो किस तरह का ट्रेवल है, राइट? ये डेस्टिनेशन टूर है या इंटरनेशनल ट्रेवल्स है, राइट? सनी डेस्टिनेशंस के लिए है या पिलग्रमेज डेस्टिनेशन के लिए है, किस तरह का टूरिज्म आप ऑर्गेनाइज, टूर ऑपरेटर आप बनना चाह रहे हो, राइट? सो व्हाट इज इट्स नेम और एक्चुअल नेम, वेदर इट कैन बी एक्चुअल बिजनेस और इट कैन बी फिक्शियस, यानी इमेजरी बिजनेस हो सकता है. आप बस एक नाम आप सोच के और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. Nature of business, that means to say product or services dealing into. Third important point is identify your target audience. यानी एज सेगमेंट क्या होगा, जेंडर क्या होगा, डेमोग्राफिक क्या होगा, साइकोग्राफिक क्या होगा, उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में नोट डाउन करना है. देन कलर स्कीमा, कौन सा कलर आप चूज कर रहे हो और अगर आप चूज कर रहे हो तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और फॉन्ट, राइट? इट शुड नॉट बी द केस दैट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यूज कर रहा हूं. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. You should do some research and then try to identify what is the background of those things. Okay. Similarly, create a logo in the JPG and PNG format. These are the two formats in which you can save your image, and you need not to convert. Canva already have those options that you can save an image either in a JPG or in PNG format. Then create a hero image for your website. हीरो इमेज कहते हैं जब आप वेबसाइट खोलते हो तो सबसे पहले जो बड़ा सा बैनर आता है, उसके लिए एक हमको उस पे बनाना है, एक फेसबुक कवर पेज बनाना है, और हमको एक कोई क्रिएटिव बैनर बनाना है, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, प्रोबेबली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लोगो के अंदर या एक बैनर के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है. तो एक जो प्रोमिनेंट चीज है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बिकॉज जब आप लोगो या क्रिएटिव बना रहे होंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. जब आप कोई बैनर बना रहे होंगे तो आपकी कंपनी का लोगो उस बैनर के ऊपर है या नहीं है, ये देखना. बिकॉज एवरी कम्युनिकेशन दैट यू आर गोइंग टू डू शुड कनेक्ट टू योर कस्टमर सेइंग दैट विच कंपनीज लोगो इज दिस, राइट? तो आपके बैनर के ऊपर कंपनी का लोगो होना चाहिए, प्रॉपर इमेज होना चाहिए, प्रॉपर मैसेजिंग होना चाहिए, लास्ट कॉल टू एक्शन होना चाहिए. कॉल टू एक्शन इन द सेंस आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस पर होने चाहिए. अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर, ईमेल है तो ईमेल है, वेबसाइट है तो वेबसाइट, या फिर वट एवर यू फील दैट इट शुड बी देयर, बट देयर शुड बी कॉल टू एक्शन so that if your banner gets circulated, people should come back to you by looking at the banner. Okay, so these are few of the important components which is there for our today's session. Now we are going to practice it, and once I demonstrate it, I expect you guys to start working on it. We have almost 1 hour time that we have. Okay, so at least we have 45 minutes of time, right? So what we are going to do is, first I will demonstrate few of the things, and then उसके बाद आप अपने हिसाब से, जो कि मैंने कहा आप लोगों को कि इसके ऊपर आपको काम करना शुरू करना है, और आप उसको डॉक्यूमेंट करो, आप उसको लिखो, वर्ड डॉक्यूमेंट निकालो, उसके ऊपर लिखना शुरू करो, राइट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस. डोंट जस्ट पुट सिंगल वर्ड और वन लाइनर, ट्राई टू एक्सप्लेन इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, राइट? बच्चों के ड्रेसेस के लिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सो व्हाट विल इट कंप्राइज ऑफ? ये इथनिक वियर होगा, मॉडर्न ड्रेसेस का होगा, राइट? किस तरह का होगा, राइट? दैट यू ट्राई टू, एंड इट इज ओनली फॉर बेबी और बेबी एंड मॉम बोथ, राइट? तो क्या है, उसी तरह से अगर आप कॉन्फेक्शनरी स्टोर खोल रहे हैं, या फिर आप कैफेटेरिया, कॉफी शॉप, वर्किंग कैफे, वट एवर बी, राइट? और
you are trying to start a clinic, you are trying to start a tuition center, you are trying to start boutique or beauty clinic, whatever it is, so you have to define it properly, right? Identify your target audience, कौन से लोग होंगे, किस एज ग्रुप के होंगे, अर्बन होंगे, रूरल होंगे, दोनों तरह के लोग होंगे, कहाँ रह रहे होंगे, right? So all those things, whether it is a regional, local or hyper local. Regional बोले तो for example South India is a region, right? Whereas local, when we talk about, maybe Telangana could be local or Hyderabad could be local. When we talk about hyper local, in Hyderabad, Hyderguda, Karkaduma, Kukatpalli or Vijayanagar or Masab Tank or Banjara Hills, these could be hyper local. तो आप किस जगह पे क्या बिजनेस करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, आपका ऑडियंस क्या है, लाइकवाइज. Now you have seen the example of Zomato and Swiggy. You have seen the example of Zomato and Swiggy. तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, so that it will be easy for you to understand what kind of messaging that you are going to use, what kind of content or combination that you can use for your brand and creating your brand. All right. So that's all for today in terms of the presentation, what I have done. I will be moving on and start showing you Canva so that we'll be able to practice it. So what we are going to do, I'll be sharing you my screen in terms of Canva, and then we'll start practicing it, right? Over to you guys. In case you have any questions so far, please ask me so that I can answer. मैं उसको answer कर देता हूँ. Otherwise, we'll move on to practicing Canva. बहुत खामोशी है, क्या बात है? यानी या तो समझ नहीं आ रहा, या फिर पसंद नहीं आ रहा, या फिर सब कुछ समझ में आ जा रहा है. या Sir, Ali sir, Sir. yeah, can you just give us like an example of like whatever happened, like आप एक आप जो भी बोले अभी तक जी. आपको एक एग्जाम्पल तौर पे कुछ करके दिखाइए, like That's what I'm saying, that अभी तक for जो better understanding. अभी तक जो मैं बताया हूँ उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो that's okay. Otherwise, I'll start practicing Canva and will share my screen so that you guys can look at it. I'm going to do Okay. the practical part only. Okay, sir. Thank you. All right. Anyone else has any concern or any question? Please let me know. All right. Sir, Yeah, please. एक प्रोजेक्ट बनाना है या फिर अपने लोगों का, पुराने लोगों मतलब ये आपके ऊपर, अगर आप पुराने लोगों Okay. को एडवांस कर सकते हो, आप कुछ बेटर कर सकते हो. Whatever we have discussed, if we are able to see there is some kind of modifications that can be done, और कुछ वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी का लोगो बना हुआ है. अगर आप बने हुए लोगों के ऊपर आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, सो यू विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग इट, राइट? तो I'll make something new. I feel that try to implement some of the creativity part. Probably it may be a value addition for you. Okay. Okay. All right. So first I'll take you guys to Canva. Okay. Let me share my screen. All right. So आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, राइट? सबसे पहले मैं यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ, ओके, because I am already logged in. So when I am already logged in, probably that will be different way, right? So मैं जब log out कर लूँगा, ठीक है, I have logged out. Okay, so here you can see that continue with another account or something like that. So I can, if I go to Canva again, it will ask for sign up or sign in. So you can see this is the screen for Canva, right? यहाँ पे login और sign up दे रहा है, right? So are you guys able to see my screen with the login or sign up? Yes. Yes, sir. Right. So I'm going to click on sign up. You will see, चूंकि मैं अपने डिजिटोज अली के अकाउंट से ऑलरेडी लॉग इन था, इसलिए वो बता रहा है, but I'll be clicking on continue with another account,
right? So you can see continue with Google, Facebook, with email, with continue any other way, right? Continue another way. So I'm clicking on continue with email. So if I click on continue with email, क्या होगा कि ये मेरा ईमेल और यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, फिर उसके बाद एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा जो कि मुझे वेरीफाई करना होगा. So I am not clicking on these options. You have liberty to choose any way, right? I'm going with continue with email, and here I'm going to write my email. All right, so I kept my email and I'm clicking on continue. Right, what is the name that I want to put in? So you can see email has been sent with the code on this Gmail account. So I'll be able to check that and see whether I have received that email or not. So you can see there is a Canva code which is there. So I'll be copying this. All right, and we'll be putting it over here. So whatever I am doing, if you guys can also start doing the same, probably step by step we'll be moving on, right? So it's nothing rocket science. Whatever I'm doing, you also start doing it, so that, because once I sign up, and if you are facing some problem, and if I want to go back, I again have to log in with the same or some other ID, right? So you can see what will you using Canva for? Large company, small business, teacher, student, not for charity or personal. I'm just clicking on personal. You can have your own, whatever it is, right? So you can see there are some of the options which are there, right? Upgrade to Canva Pro. Not to click on upgrade, you can just click on maybe later and then continue. So you are logged in at Canva interface. Now, जब आप यहाँ पे log in कर चुके हो, so you'll be able to see there are a lot of options, right? So you can see you might want to try play with Canva. That means to say how you are going to create banners and other things on Canva. You can try your document, whiteboard, right? So Instagram posts, presentations, lot of stuffs that are there. All kind of marketing collateral you can create using Canva, right? Here you have an option of business, Canva enterprises, team, sales, and business solution, marketing, creatives, agencies. So you have a lot of options, use case, resources, everything is there. Now I want to use presentation or social media or anything, right? I can do so. Okay. Website का template हमको बनाना है या print product करना है. So you are going to get all kind of things, right? Similarly, if you are not very sure, what more? You can see there are a lot of options which are there. Infographics is there, right? Desktop, some of the graphs related to, you want to use some of the graph on your PPT. So I'm like, number of things are there, right? So not to waste time for now, what I'm trying to do is like, first and foremost thing is like, we'll try to see how to create a logo, right? So what you can do, you can go over here and search for logo, right? So I search for logo and you will be able to get lot of options related to logo, okay? You can see 500 by 500 pixel animated logo, education logo, gaming logo. I can search for the kind of logo, right? Say, for example, I am into cafe business, cafe logo. There is a possibility, yes, I got a cafe logo for cafe. So there are some of the options which are there, right? So I can click on any, I'll be getting some of the options that I'll be getting, right? So you are going to get some of the options. Wherever there is a crown, you can see there is a crown, that is a pro. You need not to use that because these banners or these images are paid images. So whichever comes as a free, where you don't have a pro, it means it's not a paid, you can use.
So you'll be able to see there are many options which are free. So only try to use free version. Otherwise, even if you customize it, but you will not be able to use it because either it has limitation of downloads or it will come with watermark so that you will not be able to use it. So what I can do, I can choose any of a logo which is free, and then I can start using it. For example, I have chosen this. So I'll choose this and then click on continue this template. I'll click on continue this template. So whichever the template that you want to choose, whichever the logo that you want to use, you have to choose that and customize this template. So I'll click on customize this template and it gives us this option. Okay. So it gives us this option. Okay. Now here you can see I can change anything and everything, whatever is readable, whatever is editable. I can change this coffee mug. I can change the background. I can change all these outer circle, inner circle, everything we can change. Okay. Or we want to put in some kind of other stuff. We want to put some food. We want to put something. So you have a lot of options which are there, right? So you can choose anything. For example, I want to use some food option, right? So you can see there are some of the food options which are also there. You can choose any of the options which are free. Don't click on pro version which has a crown. You will not be able to use it, right? So I'm just editing this to make life little simpler. So this is Borosil. So what I can do, I can change it to any other name. For example, राइट, जैसे ही मैंने कॉफी वाला लिखा है, यहाँ पे नाम दिया है, ये बड़ा हो गया है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चूज इट एंड वी कैन रिड्यूस द साइज. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने अपने कंटेंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट. उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जब यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो. दीज आर द एडिटेबल टेक्स्ट. अगर मुझे ये कंटेंट जो है ये व्हाइट कलर में है, मुझे व्हाइट कलर पसंद नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू पुट सम अदर कलर, आई कैन चूज टेक्स्ट ऑफ द कलर फ्रॉम हेयर, आई कैन चूज इट. और मैं कोई भी कलर चुन सकता हूँ यहाँ से, राइट. I can choose any of the color. You can see the moment I select a font, it's as simple as that you are making some edit in your Word file. Okay, उसी तरह का simple है ये. So I can make some changes. The color that I want to use, ये कलर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दूसरा कलर आप यूज करना चाहते हो, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है. या फिर आप add your color band, अगर कोई आपका कलर बैंड है वो भी आप यूज कर सकते हो. और एल्स यहाँ पे कोई भी दूसरा कलर हमको यूज करना है वो भी हम यूज कर सकते हैं, राइट. सो यू कैन सी यू कैन मेक एनी चेंजेस इन दीज कलर्स, ठीक है. अगर मैं इसको यूज किया हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस कप इज देयर एंड आई वॉन्ट टू मेक चेंजेस, इंस्टेड ऑफ दिस कप आई वॉन्ट टू पुट एन इमेज ऑफ अ फूड, राइट. कोई हॉट फूड का हम इमेज लगाना चाहते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू. ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टाइल या कोई चीज, कोई इमेज, रेलिवेंट इमेज हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर से एक डेजर्ट का एक हम फूड ले रहे हैं या केक का ले रहे हैं, किसी भी चीज का हम ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमेज हमको यूज करना है, ठीक है. मैं इसको क्लिक करूंगा, रिप्लेस द करंट इमेज. सो व्हाट इट इज सेइंग, रिप्लेस द करंट इमेज. सो व्हेन आई विल क्लिक ऑन इट, गॉट रिप्लेस. नाउ दिस इज क्वाइट लार्जर, ठीक है. तो ये बड़ा है. अगर हम इसको चेंज करना है, हम छोटा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ सिनेरियो है. ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है. ओके, इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू कैन जस्ट गो फॉर कंट्रोल जेड, यानी आप पीछे के ऑप्शन में जा सकते हो, आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई कंटेंट, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेट कि यहाँ पर से कोई इमेज मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल में जा सकते हैं और गूगल में जाके हम कोई इमेज ढूंढ लेंगे, ठीक है. चाय कप, फॉर एग्जाम्पल आई एम सर्चिंग फॉर चाय कप इन गूगल, और मुझे कोई इमेज अच्छा सा अगर मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं कोई इमेज वहां यूज कर लेता हूं, ठीक है. इलस्ट्रेशन इन द सेंस, इस तरह का अगर हमको यूज करना है तो हम इस तरह का यूज कर सकते हैं.
राइट। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मुझे इस तरह का इमेज यूज करना है फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सेविंग दिस इमेज ऑन माय डेस्कटॉप एंड देन इस इमेज को हम फिर अपलोड कर सकते हैं। ओके, हम इस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। राइट, सो ये वाला जो है आप देख रहे हो ये पेड इमेज है, सो हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ओके, सो वी कैन गो बैक टू गूगल एंड ट्राई टू सी इन केस वी आर विल बी एबल टू फाइंड सम फ्री इमेज। ओके, हो सकता है, देखते हैं अगर इसको सेव इमेज एज करने के बाद क्या ये आता है या नहीं आता। ठीक है, आई थिंक इट विल कम, यस दैट्स केम। ठीक है, चाय कप। ओके, इट इज देयर। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू कैनवा और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में अपलोड का एक बटन आ रहा है। राइट, so you can see there is an upload button which is there, so I'll click on upload और यहाँ पे से जाके जो मैंने इमेज सेव किया अपने डेस्कटॉप पे, मैं वहां पर से अपना इमेज उठा लूंगा। ओके, एंड चाय कप, दिस इज चाय कप which is there। ओके, सो आई हैव दिस, नाउ आई कैन क्लिक ऑन इट। तो ये यहाँ पे आ गया, इसको हम चाहें तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये कॉफी कप की जगह पे मैं चाय कप यूज करता हूं, तो मैं इसको इधर कर लेता हूं और चाय कप को यहाँ पे लाके इस बीच में मैं रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। अब आप ये कहोगे कि भाई इसका तो साइड में वाइट बैकग्राउंड है, तो ये जेल नहीं कर रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाइट बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, उसके बाद उस इमेज को हमें यूज करना पड़ेगा। और ये जो इमेज है, इस इमेज को भी हम चाहें तो यूज, मतलब इसको मैं सेफ तौर पे रखा हूं, अगर हम चाहें तो इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज दिस टू सम अदर कलर, वी कैन चेंज दैट कलर। ठीक है, और भी कोई कलर हमको यूज करना है, हम उसको डार्क करना चाह रहे हैं, डार्क यूज कर लेते हैं, कोई और कलर यूज करना है, वी कैन चेंज द कलर ऑफ द कप एज वेल। लाइकवाइज इसको भी अगर हमें चेंज करना है, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन अगर हमको चेंज करना है, वी कैन एडिट वी कैन एडिट दिस इमेज एंड वी कैन डू सम इफेक्ट एज वेल। हम इसके ऊपर कुछ इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ओके, कैन सी, सो देयर आर सम इफेक्ट्स व्हिच कैन बी पुट इन। राइट, तो ये सारा आपको प्ले करना पड़ेगा। राइट, सो यू हैव टू कीप प्लेइंग, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क्स, दैट्स व्हाट वी हैव टू कीप लुकिंग एट। ठीक है, ये अगर आपको ठीक लग रहा है ठीक है, नहीं ठीक लग रहा है तो कोई दूसरा इमेज यूज करेंगे। हम जा सकते हैं, हम अपने फिर से जा सकते हैं और यहाँ जाके पीएनजी फॉर्मेट में कुछ इमेजेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द पीएनजी फॉर्मेट क्या होता है, पीएनजी फॉर्मेट मतलब ये हो जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो आप, जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि उसके साइड में वाइट बैकग्राउंड आ रहा था, तो वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो मैं जो है पीएनजी का एक फॉर्मेट सेव कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये क्या है। नो, दिस हैज टू बी सेव्ड इन पीएनजी। If you guys are not able to understand, please make sure that you guys are pinging me and telling that you are not able to understand. Okay, तो मैं यहाँ पे इसको png फॉर्मेट में इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दिस ओवर हेयर। यहाँ पर जाके मैं फिर से अपलोड करूंगा, ये मुझे नहीं पसंद आया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड आई विल बी अपलोडिंग इट अगेन। फिर से मैं जाऊंगा अपलोड फाइल्स पे और वहां से मैं डाउनलोड जो मैंने इमेज किया है, ठीक है, वो डाउनलोड जो भी किया है, ये क्या है, पीएनजी। तो दिस इज अ पीएनजी ऑप्शन विच इज देयर, तो आई पुट इट। ओके, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इसको प्ले कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, जितना भी साइड होगा, जो भी साइज होगा उसको आप खेल सकते हो उसके साथ। राइट, अगर हमको इस इमेज को क्या करना है, ठीक है, इस इमेज के अंदर हमें और भी कुछ इफेक्ट डालना है, कुछ एनिमेशन डालना है, तो वो भी हम डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं एनिमेशन और या बाकी चीज़ों का मैं नहीं कर रहा हूँ। सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड, अगर हमें इसे बैकग्राउंड में डालना है तो आप देखो जैसे ही मैंने सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड किया,
ये पूरा का पूरा इमेज जो है बैकग्राउंड में चला गया। ओके, दिस इमेज हैज गॉन इन द बैकग्राउंड। ओके, एंड अगेन आई वांट टू कीप दिस इमेज ओवर हियर, आई कैन कीप दिस इमेज। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप प्ले अराउंड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो मैं इसी इसी लोगो को मैं फाइनल करके अब इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। मीन्स दिस इज माई लोगो, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लोगो। अब यहाँ पे जब आप इसको कर लेते हो, सो वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड, दिस इज डन। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू राइट सम टेक्स्ट ओवर हेयर। तो जैसे ही टेक्स्ट मुझे लिखना है तो हम क्या करेंगे, टी पे क्लिक करेंगे, एड योर ब्रांड फॉन्ट, जो भी आप फॉन्ट यूज करना चाहते हो, हेडलाइन है, सब हेडलाइन है, किस तरह का आप यूज करना चाह रहे हो आप देख सकते हो। जिसके अंदर भी क्राउन नहीं हो उसको आप यूज करोगे, जो भी क्राउन नहीं है उसको आप यूज करोगे, राइट। सो मान ले कि मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, मैं अपना ही कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो आई कैन क्लिक ऑन इट, सो इट इज ओवर हेयर, तो आई कैन राइट समथिंग ओवर हेयर। और इसको जहां पे भी मुझे ड्रैग करना है उसको मैं ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ, राइट। आई कैन ड्रैग इट, आई वॉन्ट टू ड्रैग, आई वॉन्ट टू पुट इट ओवर हेयर। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करके जो भी रीडेबल कलर हो सकता है मैं उस कलर के अंदर डाल देता हूँ, राइट। सो आई एम गोइंग टू पुट इट हैदराबादी चाय। All right, so I just kept it Hyderabadi chai. You can customize your own way, that's not a problem. Okay, so I just want to keep it. अगर मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ और चेंज करना है आई कैन डू सो, सेंटर लाइन करना है, ऊपर नीचे करना है, या इफेक्ट डालना है, लाइकवाइज कुछ और मुझे कोई और फॉर्मेट में करना है तो आई कैन select that font or format and can do the needful. Okay, so just to keep it safe, I'm just deleting it and then I'm keeping this as my logo. तो ये जो भी आपने सेव किया ये आपके कैनवा पे सेव्ड है। अनलेस अनटिल इसको जाके आप एडिट नहीं करेंगे तब तक ये एडिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आप स्क्रॉल करें, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आर यू गाइस एबल टू सी द डाउनलोड ऑप्शन, यस और नो? Yes, sir. नाउ यू क्लिक ऑन डाउनलोड्स, यू विल बी एबल टू सी पीएनजी। जब आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो जेपीजी भी है, पीएनजी भी है। तो लोगो हमेशा दो फॉन्ट दो स्टाइल में आपको सेव करना है, पीएनजी में भी सेव करना है, जेपीजी में भी सेव करना है, राइट। सो वट एवर इज इन पीएनजी फॉर्मेट आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट, और ये मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गया। अब फिर से मैं सेव करना चाह रहा हूं जेपीजी फॉर्मेट में, तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और जेपीजी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम डाउनलोड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लोगो इज 500 बाय 500 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। इट इज 500 बाय 500 विच इज स्टैंडर्ड डायमेंशन। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सॉरी आई मिस दैट, डाउनलोड पे गए और यहाँ पे पीएनजी की जगह पे हमने जेपीजी कर लिया और इसको हम डाउनलोड कर लिया, राइट। सो बोथ ऑफ the images are saved on my desktop. Okay, so this is how you can use any logo and start customizing it. आप बाहर से इमेज लाके डाल सकते हो, आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्ले अराउंड विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, आपको इन सब के साथ खेलना पड़ेगा, राइट। तो जब तक आप इनके साथ प्ले नहीं करोगे तब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज से आप क्या कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, so whatever the changes that I made that will made be available. मान ले कि ये हमारा लोगो बन गया। ओके, so logo that we have created I am going to download this also so that हम इसको यूज कर सकें। ओके, so I am going to download this as well in a PNG format. ये भी मेरा डाउनलोड हो गया और हम जेपीजी भी एक डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि इसको क्यों कर रहे हैं, वो मैंने रफली और रॉ बनाया, उतना अच्छे से नहीं बनाया, इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड जो बनाया है उसको मैं यूज करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, अब मान ले के ये चीज हो गया,
अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बैनर बनाना है, मुझे कोई एक बैनर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से होम पे जाएंगे, राइट, चले जाएंगे यहाँ पे। और जब आप देखिएगा, जब मैं यहाँ पे होम पे गया हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मेरे डिजाइन जो हैं वो आपको दिख के आ जाएंगे, राइट। रीसेंट डिजाइन, ये रीसेंट डिजाइन आ गया। जिसमें मैंने चाय का कप पीछे लगाया था वो इसलिए नहीं सेव्ड है यहाँ पे क्योंकि मैं उसको डिलीट कर दिया। तो जो भी मैं मैनुअली डिलीट करूंगा वो नहीं रहेगा। अदरवाइज मैं उसके कॉपी को सेव करना चाहूँ तो कॉपी को सेव कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज ओवर हियर। नाउ आई वांट टू क्रिएट एनी बैनर, या फिर मैं कुछ और क्रिएट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया का एक कोई कवर पेज बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक का एक कवर पेज बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे फेसबुक, यहाँ आ रहा है फेसबुक कवर लैंडस्केप। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी रेलेवेंट टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो, रेलेवेंट टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो। अब चूंकि मैंने लोगो बनाया था, किस चीज का मैंने लोगो बनाया था, कॉफी का, कैफेटेरिया का। सो आई बी सर्चिंग फॉर कॉफी शॉप। इट विल गिव सम ऑफ द ऑप्शंस रिलेटेड टू कॉफी शॉप। आप देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ गए कॉफी शॉप के। पहला वाला फ्री है, दूसरा वाला पेड है, तीसरा वाला भी फ्री है। तो जो भी फ्री है हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्री है, ओके, सो दिस वन इज फ्री। So I'll be putting up, I'll be using this. Now जैसे ही ये वाला हम यूज कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस हैं। तो इस इमेज को इंडिविजुअली हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब यहाँ पे इमेज को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा कि इसकी जगह पे आप कुछ और डालना चाह रहे हो, या इसी तरह का आप डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हो, या रिप्लेस करना चाह रहे हैं हम, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट करेंगे तो एक और बन गया, राइट, एक और बन जाएगा ये, राइट। सो दिस हैज एन ऑप्शन ऑफ डुप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो भी है, अब मान ले कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि इस इमेज की जगह पे कोई दूसरा इमेज हम अपलोड करना चाह रहे हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगेन अपलोड पे जाएंगे, या यहां पर से सर्च कर लेंगे, कुछ और सर्च कर लेते हैं। आई सर्च फॉर बिस्किट, शेप्स कुछ मिल जाता है बिस्किट के शेप का, या कुछ भी मिल जाता है। तो विल ट्राई टू सी biscuit element. So there are some of few of the things are paid version. So we'll try to see whatever is free. Okay, so you can see this is the free one which is available. So I can customize it. उसको मैं छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर हमको देखना है तो हम छोटा आइकॉन, ये वाला बड़ा हो गया तो हम इसको डिलीट करके ये छोटा वाला ये हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। सो आई वांट टू पुट दिस कुकी ओवर हियर। व्हाट आई कैन डू, इसको लेके इस जगह पे लाके इसके डायमेंशन को हम इसके अंदर सेट कर लेंगे, एंड दिस इज इट। लाइकवाइज यू कैन मेक चेंजेस इन ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, मुझे इसको चेंज करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉफी, राइट। सो वॉट एवर इज कॉफी कप, या हमें कॉफी जो भी है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पुट इन दिस, ठीक है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, इसकी जगह पे उसको यूज करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, इट्स डन। ओके, तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हो। नाउ आई वॉन्ट टू पुट इन माई लोगो, मैं अपना लोगो भी इस बैनर के ऊपर डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपलोड जाऊंगा और देखूंगा कि मेरा यहाँ पे लोगो है नहीं है। ठीक है, अपलोड फाइल्स में कर लेता हूँ। इट विल आस्क फॉर जो भी है डाउनलोड्स में जाके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लोगो मुझे यूज करना है, तो मैं ये लोगो यूज करना चाहता हूँ।
you can see there is a logo which is there. I can put in my logo. इसका डायमेंशन हम जैसे भी सेट करना चाहें हम इसका डायमेंशन सेट कर सकते हैं, राइट। और आई वांट टू पुट इन लेयर, ठीक है, हम इसको पीछे भेजना चाह रहे हैं, वी कैन सेंड इट टू द बैक और वी कैन सेंड इट टू वॉट एवर द प्लेस, ओके। तो हम इसको कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ओके। लाइकवाइज यू वांट टू ऐड सम टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट के साथ मैं फोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ या शेप्स ऐड करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई वांट टू ऐड अ फोन नंबर, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर देयर एंड विल ट्राई टू सर्च फॉर फोन, फोन आइकॉन, ठीक है। ये फोन आइकॉन आ गया, जो भी फ्री अगर हम, ऑफ कोर्स वी आर वांट टू यूज फ्री, सो आई विल बी पुटिंग अप दिस, और ये हमारा आ गया। जहां पे भी आपको अप्रोप्रिएट प्लेस लग रहा है यू कैन पुट इन दिस, बट यू कैन रीसाइज दिस एज वेल, यू कैन रीसाइज दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको डालना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू पुट इट दैट दिस इज माई फोन दैट आई वॉन्ट टू प्रोमिनेंटली शोकेस, ये मैंने ये डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट ऑप्शन, वी कैन चूज अ टेक्स्ट ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फोन नंबर डाल रहा हूँ, अब ये मैंने डाल दिया, अब इसको मैं ड्रैग कर लूंगा, विल बी एबल टू ड्रैग दिस, ओके, आई कैन ड्रैग दिस, ओके। इसको ड्रैग करके मैं जहाँ पे भी ले जाना चाहता हूँ इसको ड्रैग करके मैं वहाँ पे लेके चला जाऊंगा, ठीक है। इसका डायमेंशन का थोड़ा सा इशू है, सो आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, राइट। इफ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, आई कैन मेक चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं ग्रीन कलर ही डाल देता हूँ विच इज prominently visible, or if not I'll be putting up this coffee color. Let's see how it appears. No, it is not visible, so I'll be making some changes. All right, so I made this change, and likewise अगर मुझे यहाँ पे और ईमेल आईडी या कुछ भी ईमेल कुछ भी डालना है तो ये हम डाल सकते हैं। Now this is done, okay. I'm not making it very detailed. Only thing is like you guys can practice it, okay. अब क्या करेंगे, इसको हम शेयर पे जाएंगे फिर, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। नीचे आएंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम जेपीजी फॉर्मेट में हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका साइज क्या है आप देख सकते हो, 851 बाय 315 पिक्सल का साइट है, और इसकी क्वालिटी 80, राइट। एंड देन देयर आर ऑप्शंस व्हिच आर देयर, यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट। ऊपर सर कॉफी, अगर हमें का वाइट बैकग्राउंड हमें खत्म करना है तो वो कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए रिमूव दूसरा टूल यूज कर लेने का, वैसे तो इसके अंदर भी ऑप्शन है, बट आसान तरीका ये है कि रिमूव बीजी करके एक टूल आता है, रिमूव बीजी, राइट, सर बैकग्राउंड। वो तो अलग वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट में मतलब कोई ऐसा है टूल? नहीं नहीं, इस वेबसाइट पे ये पीएनजी अगर फॉर्मेट में हम इसको ले रहे हैं, मैंने जेपीजी वाला यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, तो अगर आप पीएनजी फॉर्मेट आप ले रहे हैं तो बैकग्राउंड नहीं रहता है। फिर भी कभी कभी ये रहता है कि ये बैकग्राउंड ले लेता है, तो आप रिमूव बीजी वाला जो ऑप्शन है वहां से जाके आप इमेज का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो, वाइट बैकग्राउंड। फिर जैसे मैं इस लोगो को डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ वहीं से सेव करके आप अपलोड करके उस लोगो को यूज कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, अब ये टेक्स्ट है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें, so it's up to you, कलर चेंज कर सकते हैं जो भी है, राइट। एंड देन वी कैन शेयर इट, एज आई सेड ऑलरेडी हम इसको डाउनलोड कर चुके हैं, बट अगर आप चाहें तो किसी और फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन द सेंस पीडीएफ प्रिंटेबल वर्जन, राइट। in case you are making some animation then it can be downloaded in mp4 video, but since हमारा कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम एज इज इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा और हम इसको देख सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन दिखेगा कैसा, राइट। सो दिस इज अबाउट क्रिएशन ऑफ फ्यू ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आई हैव जस्ट ड्राफ्टेड, ओके। तो अब हम ये जाके देख सकते हैं
कि भाई हमने जो डाउनलोड किया है वो अवेलेबल कहाँ पे है, राइट। हमने जो भी डाउनलोड किया है वो कहाँ पे है। सो वी कैन क्लिक ओवर हियर और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी हमने डाउनलोड किया है वो हमारे डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हो वो वहाँ पे आ जाता है और आप इस बैनर को यूज कर सकते हो भाई। नाउ अब जैसे आपका ये क्वेश्चन था कि वाइट बैकग्राउंड या ये वाइट बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो दो ऑप्शन इसके हो सकते हैं। या तो आप रिमूव बीजी पे जाके इसके वाइट बैकग्राउंड को आप हटा लो, या फिर ये कॉफी शॉप का जो ब्लैक कलर है अगर आपको उसके साथ जेल करना है तो कॉफी शॉप के बैनर का जो ब्लैक कलर है इसको आप चेंज कर सकते हो लिटिल बिट। या तो इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, लोगो जब आप क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे भी जाके कॉफी वाला कलर या जो भी ये कलर कलर स्टाइल है वो आप यूज करके उसको बैकग्राउंड के साथ जेल कर सकते हो, राइट। तो उस तरह से करके भी आप इन चीजों को कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ। रीजन इज अगर हम उस पे जाएंगे तो शायद पूरा हफ्ता चला जाएगा, पूरा वीक चला जाएगा और हम सिर्फ क्रिएटिव यानी डिजाइन के बारे में भी हम समझ पाएंगे। मैं इस इंटरफेस को इसलिए आप लोगों के सामने बता रहा हूं ताकि आप लोग अपने प्रैक्टिस से इन चीजों को क्रिएट करके आप प्ले अराउंड करके इस चीज को क्रिएट करेंगे, राइट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। ओके, सो नाउ लाइकवाइज अगर हमको कुछ और बनाना है तो अभी मैंने जो भी यहाँ पे बनाया है, ठीक है, जो भी यहाँ पे बनाया है अगर आप होम पे चले जाएं तो आप देखिएगा यहाँ पे ये डिजाइन जो कि मैंने अभी बैनर बनाया है ये यहाँ पे मुझे मेरे माई डिजाइन्स में सेव दिखेगा, रिसेंट डिजाइन्स में ये सेव दिख जाएगा। ओके, लाइकवाइज इसके नाम को चेंज करना है, इसके नाम को चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है आप यहाँ पर से। So this is what it is. Now in future we want to edit it. Again आप इसको कॉल कर सकते हो, आप इसको डबल क्लिक करो और फिर आप एडिट फॉर्मेट में आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से लोगो हटा देना है, मैं यहाँ से लोगो हटा दे सकता हूँ। कुछ और फॉर्मेट डालना है, कुछ और टेक्स्ट डालना है, हम उसको भी डाल सकते हैं। So that's what we can manage, we can do. Okay? So now as we discussed earlier that using this platform you have to create some one of the logo और ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। Now keeping the interest of the time I am also trying to showcase few other tools जो कि आपको मैंने लिस्ट के तौर पे मैंने दिया था। उन टूल्स को भी हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या है और किस तरह की पॉसिबिलिटी हम उसके अंदर कर सकते हैं। I'll just share my screen so that you guys will be able to see it. Now over to you guys that you practice these platforms and come up with the best possible thing. What works good for you that you have to decide, right? I'm giving you plenty of options that you can play around. Okay? All right. So I'm going to this. ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, right? You will be able to see this is something related to Pixlr, right? So this is a website Pixlr और ये क्या करता है AI image generator and AI design. So what you can do, AI photo editor और AI image generator. So it will help you to generate image. All image generators, lot of options are there. ठीक है, resize your image, remove background. Right. मैं remove background के options पे ही चला जाता हूँ, right? You can see. Okay, so whatever the option that we have identified, for example ये वाला था, so this tool is actually going to help to remove your background and you can use it for your creative purpose, right? तो ये जो टूल अब देखो ये पूरा आपका ये आ गया। now you can save it, file saved, right? And we can actually use that. ठीक है, तो इसी तरह से जाके आप यहाँ पर से आके बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए और आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कैनवा ही यूज करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कैनवा ही यूज करना है। आप विदाउट बीजी कॉफी लोगो, right? What you can do, you can use any of the platform whatever I am showcasing you, right? तो अब ये इमेज का आपका बैकग्राउंड चला गया, right? Now you can go back to the main और फिर यहाँ पे आके आप जो भी आपको करना है, यानी इफ यू वांट टू क्रिएट इमेज फॉर योर फेसबुक
एनी ऑफ द ऑप्शंस यू कैन सी। एडिट भी कर सकते हो आप, डिजाइन कर सकते हो आप, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। यू कैन क्रिएट कोलाज, कोलाज मीन्स मल्टीपल इमेजेस को एक साथ आप मर्ज करके आप कर सकते हो। क्रॉप करना है इन द सेंस एक पर्टिकुलर चीज हमको सिर्फ निकालना है, बाकी चीज नहीं निकालना है, ठीक है। उसी तरह से रीसाइज ऑफ द इमेज, ओके। आपको डिजाइन टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप जाके आप यहाँ पर से आप टेम्पलेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मुझे किस लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फेसबुक पोस्ट के लिए चाहिए, राइट। सो आई क्लिक ऑन फेसबुक पोस्ट एंड आई बी एबल टू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखोगे आप, देर आर फोटो कोलाज मेकर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक पोस्ट, स्टोरीज, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। यू हैव बैनर्स, यू हैव लाइक, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। You can use this template. This is also going to work on the similar line how Canva was working, right? तो आपके पास ये इमेज आ गया, आप इसके अंदर जो भी चेंज करना चाहते हो, ये इमेज बदलना चाहते हो, ये टेक्स्ट बदलना चाहते हो, राइट, ऑफ कॉल टू एक्शन, वेबसाइट बदलना चाहते हो, जो भी बदलना चाहते हो, यू कैन डू इट, राइट। यू वांट टू सेव इट, यू कैन सेव इट इन द फॉर्मेट। आप टेक्स्ट स्टाइल बदलना चाहते हो, फॉन्ट बदलना चाहते हो, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है इक्विवेलेंट टू कैनवा, ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। सो आई एम नॉट आस्किंग यू ओनली टू यूज कैनवा, यू एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस। आई फील कैनवा एंड पिक्सलर आर two of the best options which are available. Most of your activity will be done using this. आप कौन सा कर्व यूज करना चाह रहे हो, रैप, सो ऑल यू हैव टू प्ले अराउंड, राइट। टेक लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई, व्हाटएवर। ये वाला है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं? बाय नाउ की जगह पे ऑर्डर नाउ करना चाह रहे हैं, या फिर बैकग्राउंड इमेज हम चेंज करना, बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं। व्हाटएवर वी वांट टू चेंज वी कैन चेंज दैट, व्हाटएवर वी वांट टू चेंज वी कैन चेंज दैट, ओके। अगर मान ले कि ये करूं और यहाँ पे बाय टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए फिल साइज, and then you will get some of the option related to background as well. अब बैकग्राउंड पे जाऊंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन भी आपको है, आप चाहो तो बैकग्राउंड प्ले। सो व्हाट वर्क्स, सो यू हैव टू प्ले अराउंड कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा आपके लिए। सो यू कैन सी आई जस्ट चेंज द बैकग्राउंड एंड इट इज शोइंग दैट सम ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आर देयर। लाइकवाइज कर सकते हैं आप, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक यू हैव टू प्ले अराउंड। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ इट, बट यू हैव टू प्ले अराउंड। जैसे यहाँ पे है, बहुत आसान सी चीज है, ये वाला इंटरफेस आपके लिए और आसान है कि आपने बाय नाउ को क्लिक किया, यहाँ पे बाय नाउ लिखा हुआ आ रहा है, आप ऑर्डर नाउ लिख दिया, राइट। यू विल पुट ऑर्डर नाउ एंड इट विल बी लाइक दैट, ओके। टेक्स्ट ऑर्डर नाउ, ओके। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ थिंग। उसी तरह से अगर मुझे ये यूज करना है कुछ भी, so we can use that kind of options, we can use it, right। तो अगर हम इसको छोटा कर लें तो शायद हमको समझ में आएगा कि क्या ऑप्शन है क्या ऑप्शन नहीं है, ओके। सो लाइकवाइज यू कैन यूज इट। मुझे ये पूरे को डिलीट कर देना है, आई डोंट वांट टू कीप दिस, आई कैन डिलीट दैट एज वेल, ओके। ये हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो लाइकवाइज you can have various options that you want to you put it, you can have various options। अब यहाँ पे ये वाला कलर है, जिसको हम चाहें तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो बैकग्राउंड टेम्पलेट, बैकग्राउंड्स, anything and everything that we can play around with, background of the whole image or background of this, everything is editable, right। so what I'm recommending you guys is please make sure that use these two platforms। Likewise there is another platform, so I make sure that I'm requesting you guys is please try to use these platform and also sign up। when you will sign up, all of your designs will be saved, right। likewise दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है लोगो AI। लोगो AI is another tool। in fact आप पिक्सलर पे लोगो भी क्रिएट कर सकते हो, you can create logo as well on Pixlr, right। but dedicatedly for logo there are other platforms which are also there, so you can play around। here is the website only for logo, right। logo ideas, logo maker, logo ideas, AI designer, right। so you can choose any of the formats, there are lot of logos which are there, you'll get lot of options। you can see hotel logo, so if you click on hotel logo you are going to get lot of hotel logos। likewise
it is self-generated. You just need to put some of the options. So I want to put AI logo. So I'll click on AI logo maker and then start from here. So what is the logo name, right? Logo name, for example, I'm just putting Pista House, right? Okay. So it will ask for continue. It will ask for certain options. किस तरह का आप ऑप्शन देना चाहते हो, होटल से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, राइट? सो व्हाट इट इज आस्किंग, प्लीज सेलेक्ट एन इंडस्ट्री, राइट? सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी कैन सेलेक्ट, रिलेटेड टू रेस्टोरेंट. Okay, then which color combination that you want to use, which color combination that you want to use. If you don't have any idea, you can skip it, or if you want to have something, you can keep it, right? तो मैं एक bright color या cold color को मैं use कर लेता हूँ, right? So I am using it. I can use more than one combination and continue. Which kind of logo that you want to use, modern, elegant, slab, or likewise. So you need to choose 2 or 3 of the options. So for example, I am choosing modern, elegant, as well as playful. All right. And then I'm clicking on the continue. Okay. So we are generating logos for you. अब आपके पास इतने सारे logos आ गए, right? So what you have to do to use or edit something, you have to sign in, right? You have to sign up. So if you are not a member, you can continue with Google, or you can register and start using it. Okay. So you are going to get lot of options. और इन सारे को choose करके आप edit भी कर सकते हो. You want to change the color, you can change the color. But the moment I am going to do that, for example, gray scale भी मैं एक add कर दिया और इसको मैं okay कर दिया. So I'll be getting some more options related to grayscale as well, right? But thing is, like, I cannot see it unless until I don't sign up for this. Likewise, उसी तरह से दूसरा एक platform है, which is designs.ai, which is designs.ai. Again, here you are going to get lot of options. Graphic maker, front pager, color matching. You can create lot of things. Okay. So what you can do lot of stuff over here. So what I am telling you is, it's nothing called hard and fast rule that this works or other works. The way that Samara has asked that बैकग्राउंड हटाने के लिए, उसके लिए हमको दूसरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो आप कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है, ये आप डिसाइड करोगे. बट दीज ऑल आर द ऑप्शंस that is there which will help you to create lucrative and effective banners or creatives for your target audience. उसी तरह से एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है logo.com. This also helps you to create free logo. For example, मैं पिस्ता हाउस का लिखा था, पिस्ता हाउस ही बनाता हूं. You can see the variations that you'll be able to get. ठीक है? Business owner, not for profit, others, whatever it is. So I'm saying others, logo of the industry. ये किस तरह से है? ये रेस्टोरेंट है. You can see there is restaurant which is there. अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? आपको suggestions कह रहा है, keywords. So you can put in some of the keywords, okay, and then you can continue. Okay, so I've just kept in, and then we can continue using this.
Click on the next. We'll be going to the next. Okay. अब यहाँ पे आपको options नजर आ जाएंगे. You are going to get options over here. Okay. आप देख लो, जो भी मैंने कलर कॉम्बिनेशन चूज किया था या जो आइटम मैंने चूज किया था उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल गए. नाउ अप टू यू, यू कैन यूज एनी और यू कैन स्टार्ट एडिटिंग. अब लेफ्ट साइड में जब देखोगे तो आपको निकलेगा लेआउट्स. सो इफ यू क्लिक ऑन लेआउट्स, you'll be able to see various things. सबसे पहले आप कोई भी लेआउट आप चुन लो and then you'll be able to make some changes. For example, मैं ये वाला चुना हूं और ये वाला font है, right? So I want to reduce this font, right? Okay, I want to reduce this. Size भी अगर मुझे करना है तो मैं size भी इसको change कर सकता हूँ. Italic है, right? Scalability, right? So whatever it is, I can make those changes. Beauty of this particular site is आपको यहाँ पे स्लोगन का कलर कोड, यानी जो भी कलर कोड आप यूज करना चाहते हो, इफ यू विल पुट एग्जैक्ट कलर कोड, दिस लोगो विल गेट चेंज इन दैट कलर, राइट? तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जो कि आप चेंज कर सकते हो. उसी तरह से आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे कुछ कंटेंट चेंज करना चाहते हो. All right. So whatever you want to put in, you can put in. Right? तो इसको अगर मैं 40 डाल रहा हूं तो आई कैन सी इट विल गेट लाइकवाइज. ठीक है. सो यू विल गेट एन ऑप्शन टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स. लाइकवाइज आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो. यहाँ पे इट इज ओनली कलर इन कमिंग इन दिस कलर. If I want to make some changes, I can put on the multicolor, multi-line, and then you'll be able to see there will be various options that you can identify. So I don't want to convert it into multi-line, means एक से दो line में नहीं जाना है. ठीक, I just want to keep it likewise. Okay, so I can use any icon, I can use all these options which are there, so you can identify. So as I was saying, there is nothing called hard and fast rule that this is only the option which is available. Last but not the least, Looka. Looka.com, which is there, we call it Looka, right? So Looka.com. This is again an option where you can do logo maker. You can use similar kind of pattern is there. You can create a lot of designs over here, right? So whatever the options that I have given, I have showcased. You guys please try to work on all these and try to experiment it. Okay, so I'm going to stop now. All right. So what you guys have to do tomorrow when we are going to meet, I want all of you to come with the screen that I have shared. That means to say, what is the fictitious business or real business that you want to work on? Who is your target audience? What color combination that you are using? And try to come up with at least one logo and one creative if possible. I want all of you to do that. And that is what the learning is. It's not like just delivering the session and that's it. You have to learn it, make sure that you create, and you can create 2 or 3 variations, right? You can create 2 or 3 variations and then try to see what works for you. All right. Is that okay, guys? Yes. There are Okay. there are some of the chats which are there. I don't know. Okay, sir. All right. All right. All right, guys. So thank you very much for patiently listening. Hope it was of some use to you guys. But unless until you will not practice it, doesn't make any sense. All right. Thank you very much. Thank you for patiently listening me. But I expect all of you to come with your work, with your tasks tomorrow. If not, then you have to do that during the session and then you have to practice it. I believe that you guys are going to come with your designs that will save others time, right? And then you have to present that what you have designed. You have to present as well, right? All right. All right, guys. Thank you very much. Good night and see you tomorrow. Take care.